Hello bachcho, let's read this question. A vessel of volume V equals to 30 liter is separated into three equal parts by stationary semi-permeable thin particles. The left, middle and right parts are filled with mass of hydrogen equals to 30 gram, mass of oxygen equals to 160 gram and mass of nitrogen equals to 70 gram respectively. The left partition lets only hydrogen while the right partition lets through hydrogen while the right partition lets through hydrogen and nitrogen. What will be the pressure in each part of the vessel after the equilibrium has been set if the vessel is kept at a constant temperature T equals to 300 Kelvin? इस क्वेश्चन में हमें एक वेसल दिया गया है जिसकी वॉल्यूम V की वैल्यू 30 लीटर दी गई है और इसे तीन पार्ट्स में सेमी परमिएबल थिन पार्टिकल्स के थ्रू सेपरेट करा गया है. These are semi-permeable particles. अब left, middle and right parts are filled with hydrogen, oxygen and nitrogen respectively. जहाँ पर हाइड्रोजन की मास की वैल्यू है 30 ग्राम, ऑक्सीजन के मास की वैल्यू है 160 ग्राम एंड मास ऑफ नाइट्रोजन इज 70 ग्राम. ये लेफ्ट वाला परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ अपने थ्रू हाइड्रोजन को पास होने देता है, जबकि राइट वाला पार्टीशन अपने थ्रू हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों को क्रॉस या ट्रांसपोर्ट होने देता है. सो स्टूडेंट्स हमें बताना है ईच पार्ट ऑफ वेसल में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी. फॉर दैट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज that ideal gas equation. This is PV equals to N times R times T. यहाँ से हम प्रेशर की वैल्यू लिख सकते हैं N R T अपॉन वॉल्यूम V. So vessel, this was the vessel. लेट्स से इसके कंपार्टमेंट 1 में हाइड्रोजन गैस मौजूद है, कंपार्टमेंट 2 में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है एंड कंपार्टमेंट 3 में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है. सो फॉर हाइड्रोजन आइडियल गैस इक्वेशन से हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एन आर टी अपॉन वॉल्यूम वी. यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होगी गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. गिवन वेट इज 30 ग्राम गिवन एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 2 into 8.314. This is the gas constant value and temperature is 300 Kelvin upon volume. Since friends हाइड्रोजन इस और इस परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकता है, तो ये हाइड्रोजन की जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है इसमें दिस इज 30 लीटर, दैट इज V equals to 30 liter. Upon solving the value of pressure, we will get as 12.471 into 10 raised to the power 5 Pascal. Now, for oxygen, we can write again using ideal gas equation, pressure equals to nRT upon V. And number of moles will be given weight for oxygen, that is 160 upon its molecular weight is 32 times R is 8.314 into temperature as 300. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन. सिंस स्टूडेंट्स ऑक्सीजन को कोई भी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने थ्रू पास नहीं होने दे रहा है, सो ऑक्सीजन विल कन्फाइंड इन दी कंपार्टमेंट 2, यानी ऑक्सीजन की ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है सिर्फ 10 लीटर्स. सो दिस विल बी 32 times 10. अपॉन सॉल्विंग दिस you will get values 12.471 into 10 raised to the power 5 Pascal. Now for nitrogen, for N2 gas, it can pass through the second or the right lane only, therefore it will be present on second and third compartment of vessel. So students, from the formula of pressure, this will be nRT upon V.
जहां पर n की वैल्यू गिवन वेट बटा मोलर वेट, एंड नाइट्रोजन के लिए जो वेट गिवन है दिस इज 70 ग्राम. सो 70 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट इज 28 टाइम्स वॉल्यूम. सिंस दो कंपार्टमेंट में मौजूद है, सो दिस विल बी 20 लीटर टाइम्स R is 38.314 into temperature is 300 Kelvin. This is 20 liter, and upon solving we will get pressure for nitrogen as 3.178 into 10 raised to the power 8 Pascal. Pressure will come. Solving, the pressure on first compartment will be given due to pressure of hydrogen, and इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी. दिस इज 12.471 times 10 raised to the power 5 Pascal, and pressure in second compartment, this will be due to pressure of hydrogen plus pressure of oxygen plus pressure of nitrogen, and this must be equals to 28.06 into 10 raised to the power 5 Pascal, and pressure 3, that is pressure at compartment 3, this is contributed due to pressure of nitrogen and pressure of, and this is equals to 15.589 into 10 raised to the power 5 पास्कल. अब स्टूडेंट्स एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको आ सकता है डेट हमने यहाँ पर प्रेशर्स को ऐड किस लिए किया. सो सपोज अगर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के पास वॉल्यूम इतना होता तो ये प्रेशर, सपोज ये n नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो अगर हम इसका प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रेशर वो प्रेशर है जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वे में लगा रहे होंगे. सो अगर हम कंटेनर लेट्स से कंपार्टमेंट 2 की बात करते हैं, तो इस वाले वॉल पर हाइड्रोजन एटम जितना प्रेशर लगा रहा होगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी उतना ही प्रेशर लगा रहे होंगे, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का भी कंट्रीब्यूशन आएगा, प्लस नाइट्रोजन के इधर आने की वजह से ये नाइट्रोजन का भी कंट्रीब्यूशन आएगा. इस साइड में नाइट्रोजन होने की वजह से ये नाइट्रोजन का प्रेशर, और हाइड्रोजन के डिफ्यूज होने की वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रेशर. सो इस वजह से हमने इन दोनों को ऐड किया, फिर सेकेंड कंपार्टमेंट में तीनों को ऐड किया, जबकि फर्स्ट कंपार्टमेंट में सिर्फ हाइड्रोजन था, इस वजह से प्योरली हाइड्रोजन का प्रेशर लिखा. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स. थैंक यू.